आगाज़ में आपको बताएं, हमने ऐसे ग्रुप से बातचीत शुरू की है जिनके साथ सुलह हो सकती है और वो हथियार फेंककर नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। जो नहीं मानेंगे उनके खिलाफ एक्शन होगा। मिडल ईस्ट आई को इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, हम तगड़ी पोजीशन में हैं। मेरा मानना है कि तमाम मुसल्लह मज़ाहमतें मुज़ाकरात की मेज़ पर एहतिताम पजीर होती हैं। अफ़गान तालिबान ने यकीन दिलाया है कि उनकी सरहद से हमले नहीं होंगे। पहले भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ अफ़गान एजेंसी के साथ मिलकर यहाँ हमले करती थी। Groups call themselves Taliban. 16,000 terrorist attacks inside Pakistan. 80,000 Pakistanis. As the American footprint decreased, this movement, the motivation went down. Now, clearly, we are no longer collaborators. But now we are trying to talk to those who can be reconciled because it's from a position of strength. I always believe, all insurgencies eventually end up on the dialogue table, like the IRA, for instance. So, from a position of strength, we want to talk to them. Because in Afghanistan, the Afghan Taliban have assured us they will not allow them to attack us from Afghanistan side, which the previous government did. RAW, which was the Indian agency aligned with the Afghan intelligence agencies, they helped them conduct attacks. One was the biggest attack against the Chinese nationals here. So now, because the Taliban won't allow them, we now have talked to them who we can reconcile and give up their arms and live as normal citizens. So that's what we're trying. And the ones who then obviously the government will take action. वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यह भी कहा कि मुस्तहकम अफगान हुकूमत दाइश से बेहतर तरीके से निपट सकती है। तालिबान दाइश से निपटने के लिए वाहिद ऑप्शन है। उन्हें तनहा करना इंसानी बहरान को जन्म देगा। आलमी बरादरी अफगानिस्तान को तनहा ना छोड़े। Well, must engage with Afghanistan, because if it pushes it away, within the Taliban movement, I would imagine there would be liners. And so it can easily go back to the Taliban of 20 years ago, which is actually a real worry for all of us, especially for Pakistan. I think that it would be a total waste. I mean, it would be, what has the US got to show after that 20 years? So therefore, a stable Afghanistan government, which can then take on ISIS. And believe me, Taliban are the best bet to get rid of ISIS. That is the only option left. Isolating them, sanctioning them is going to, apart from anything else, apart from the chaos, it is going to be such a huge humanitarian crisis. कश्मीरी एक आज़ाद मुल्क के तौर पर रहने का फैसला करें तो उन्हें जमहूरी हक हासिल होना चाहिए। भारत गैर मुअय्यना मुद्दत तक कश्मीरियों को खुली जेल में नहीं रख सकता। अब बॉल भारत की कोर्ट में है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं, नरेंद्र मोदी इसराइल का दौरा करता है, वापस आकर कश्मीर पर चढ़ाई कर देता है। भारत को अमेरिका की वीटो पावर का अंदाज़ा है, इसलिए वो बच निकलता है। दुनिया में इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफवर्जी कश्मीर में हो रही है। Problem is that we are not now talking about it as a territorial issue. We are simply talking that allow the Kashmiris, and we in Pakistan have given them the other option. They don't have to come either to Pakistan or India, just their right, democratic right, if they want to be an independent country. Clearly the ball lies in Indian court. What do they do now? The Modi visits Israel and then he comes back and clamps down on Kashmir and the events of 5th August 2019, do we think that he got his instruction from there? Because that's what Israel has done. They have just built such a strong security apparatus. Whatever the United Nations General Assembly says, they have complete confidence in the veto power which the US has in the Security Council. So they get away with anything. And I feel that India feels, because now it is being used, or it is considered a bulwark against China. They are now part of the Quad. I feel it's the same thing. India can get away with anything. My whole point is that when they ask us to comment on human rights elsewhere, the worst human rights violation is in Kashmir. Nowhere. और हालिया क्रिकेट क्राइसिस के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने बात करते हुए कहा कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने मायूस किया। कहा कि आज भी बरतानिया में ये एहसास पाया जाता है कि वो पाकिस्तान जैसे ममालिक के साथ खेलकर कोई एहसान कर रहा है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड दुनिया का अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड है जो वर्ल्ड क्रिकेट को कंट्रोल करता है।
There is still this feeling in England that they do a great favor to play for countries like Pakistan. Indian Cricket Board now is the richest cricket board in the world. The money lies in India. So India basically now controls world cricket. I mean, they do whatever they say go. No one would dare do that to India because they know that the sums involved, India can sort of produce much more money. I didn't criticize, I didn't say anything. But I think England let themselves down because I expected a bit more from England. Biggest worry of protection of the foreign teams is for us. Imagine if something happens in Pakistan to a team, we are responsible. And we have one of the best intelligence agencies in the world. So I checked thoroughly. In the end, I didn't really comment on it. I think the teams let themselves down. दाइश के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए अमरीकी ताउन की ज़रूरत नहीं, दहशतगर्द हमलों का मुकाबला करने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। तालिबान रहनुमा सुहेल शाहीन की अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि अमरीकी वफ़द को अफ़गान सरज़मीन किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने की यकीन दहानी करा दी है। दूसरी जानिब दोहा में अमरीका और तालिबान के 2 रोज़ा मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अमरीका ने अफ़गान अवाम को इंसानी इमदाद फराहम करने का वादा किया है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ये कहते हैं कि पाकिस्तान अपनी ज़िंदगी के हसास तरीन 4 महीनों से गुजर रहा है, एहतियात की ज़रूरत है। PDM ने अफगानिस्तान के हालात मद्देनज़र रखकर फैसला ना किया तो नुकसान उनका ही होगा। ऐसा ना हो कि PDM जो करने जा रही है अपने गले पड़ जाए। इमरान खान के हवाले से कहा कि वो अपने 5 साल पूरे करेंगे। पाकिस्तान अपनी जिंदगी के हसास तरीन 3-4 महीनों से गुजर रहा है। हमारे पड़ोस में एक बड़ी तब्दीली आई है। वहाँ सुकून होगा तो यहाँ सुकून होगा, वहाँ अगर बदअमनी के हालात हुए तो हमें वो भी फेस करना पड़ेगा। एहतियात की ज़रूरत है। PDM सियासी तौर पर जो भी फैसला करने जा रही है वो इस खित्ते के हालात को सामने रखे। अब वो जो कुछ करने जा रहे हैं ये ना हो कि उनके गले पड़ जाए। अगर अफगानिस्तान के हालात को मद्देनज़र रखकर फैसला नहीं करेंगे तो नुकसान इन्हीं का होगा। इमरान खान तुन के 5 साल पूरे करेगा इंशाल्लाह। देखिए, सिविल मिलिट्री रिलेशन पे मैं ये कह सकता हूँ सब मामला ठीक हैं। 88 अफराद को गिरफ्तार किया है डॉलर होल्डिंग में। ये वो लोग हैं पाकिस्तान की करेंसी को महंगा करने में, दूसरी तरफ भेजने में किरदार अदा कर रहे थे। 5 पाकिस्तान की बड़ी कंपनियों का जो डॉलर्स को डील करते हैं एक्सचेंज को ऑडिट करने का फैसला दिया है। 91 NGOs जो हैं, फॉरेन फंडिंग जो हैं, उसको भी हम देख रहे हैं कि वो तरतीब में हो। कोई ऐसी NGOs हैं जो कि कवर सर्विस में काम कर रही हैं, उनसे बास-पोस करिए। हम कानून की सतह पे उसको देखना चाहते हैं। PDM का सरबराही इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। इजलास की सदारत PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान करेंगे। इजलास में PDM में शामिल जमातों के सरबराहान शरीक होंगे। इंतखाबी इस्लाहात, महंगाई और नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के उमूर ज़ेर गौर आएंगे। इजलास नून लीग सेक्रेटेरिएट में होगा। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग फॉरेन फंडिंग केसेस PTI केस से मुमासलत रखते हैं। इलेक्शन कमीशन ने फ़ारूक हबीब की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि फ़ारूक हबीब 8 दिन तक माहिरीन के हमरा दस्तावेज़ात का जायज़ा ले सकते हैं। फ़ारूक हबीब 5 दिन में तकनीकी और मालियाती माहिरीन के नाम देने के पाबंद होंगे। बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे जाहिद मशवानी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, क्या तफसीलात सामने आई हैं? PTI के फ़ारूक हबीब की तरफ से ये दरख्वास्त दायर की गई थी, इस पर फैसला महफूज किया गया था। आज अलसुबह इलेक्शन कमीशन ने मुख्तसर फैसले में उनकी दरख्वास्त मंजूर की थी और उनको ये रिकॉर्ड चेक करने की इजाज़त दे दी गई थी। अब बाकायदा तहरीरी फैसला जो तफसीली फैसला है वो जारी कर दिया गया है। फैसले में कहा गया है कि फ़ारूक हबीब 8 दिन तक माहिरीन के हमरा दस्तावेज़ात का जायज़ा ले सकते हैं। 5 दिन में तकनीकी और मालियाती माहिरीन के नाम देने के वो पाबंद होंगे। ये तमाम अमल इलेक्शन कमीशन के डिप्टी डायरेक्टर कानून और सेक्रेटरी से मुतालिक जो ऑफिसर हैं दस्तावेज़ात के जायजे के अमल में इनकी इस अमल की निगरानी करेंगे। फ़ारूक हबीब के माहिरीन पीपल्स पार्टी और नून लीग के दस्तावेज़ात का जायज़ा ले सकेंगे। याद रहे कि फ़ारूक हबीब PTI के रहनुमा हैं और उन्होंने पीपल्स पार्टी और नून लीग के फॉरेन फंडिंग्स के हवाले से इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर रखी है। जी, शुक्रिया आपका जाहिद। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब कहते हैं पीपल्स पार्टी के 12 और नून लीग के 7 अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन से छुपाए गए थे। नून लीग और पीपल्स पार्टी को लेने के देने पड़ गए हैं। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे ब्रेक के बाद।
सिंध में 12 रबीउल अव्वल पर मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं। नज़ीर, बताइए इस मुतालिक। बिल्कुल, देखिए, महकमा दाखिला सिंध की जानिब से 19 तारीख को बरोज जो 12 रबीउल अव्वल होगा उस रोज के लिए डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सिंध भर में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया और यही बताया गया है कि पाकिस्तान इंडिया सिंध की दरख्वास्त पर जो खदशात है उसके तहत एक रोज के लिए पाबंदी की दरख्वास्त। ठीक है, नज़ीर हमें अपडेट कर रहे हैं कि सिंध में 12 रबीउल अव्वल पर मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है और महकमा दाखिला सिंध के जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 19 अक्टूबर को एक दिन के लिए पाबंदी रहेगी। वफाकी वजीर हमाद अजहर ने लेस्को में ख़राब और जलने वाले मीटर पर एवरेज बिल भेजने का नोटिस ले लिया। कहा कि टेक्नोलॉजी के दौर में एवरेज बिल भेजना सारिफ से जुल्म है। बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे मज़हर इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। मज़हर, मज़ीद क्या कहना था उनकी जानिब से? जी, वफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर ने लेस्को में ख़राब और जलने वाले जो सार्फिन के मीटर हैं उन पर एवरेज बिल डालने का नोटिस लिया है और लेस्को हुकाम की इस पर शदीद सरजनिश की है। ज़राए ने यह बताया है कि वफाकी वजीर तवानाई के चूँकि उनका हल्का इंतखाब लाहौर है और लेस्को के मुतअद्दिद जो सार्फिन हैं उन्होंने उनसे ये शिकायत की थी कि लेस्को जो है वो जले हुए और ख़राब मीटर्स पर भी एवरेज बिल भेजा जा रहा है और उनको इस तरीके से जो है बड़े पैमाने पर नाजायज़ बिल भिजवाए गए हैं, जिस पर उन्होंने लेस्को हुकाम से ये कहा है कि इनके तमाम जो मीटर है उनको भी दुरुस्त किया जाए, मीटर तब्दील किए जाए और जो बिल उनको भिजवाए गए हैं एवरेज, तो इसको भी फौरी तौर पर दुरुस्त किया जाए। और उनका ये कहना था कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में खराब और जले हुए मीटर पर एवरेज बिल भेजना दुरुस्त नहीं है, लिहाजा हुकाम इनको दुरुस्त करके बिल भी दुरुस्त करे और मीटर भी, और इसकी रिपोर्ट उनको फौरी तौर पर इस्लामाबाद भिजवाई जाए। ठीक है, तफसीलात से आगाह कर रहे थे मज़हर इकबाल, शुक्रिया आपका। ग्रेटर इकबाल पार्क केस में टिकटॉकर आयशा और उसके साथी रैम्बो की ऑडियो टेप सामने आ गई है। दोनों के दरमियान जेल में शनाख्त होने वाले मुल्जिमान से रकम लेने के हवाले से गुफ्तगू हुई। ऑडियो में रैम्बो के सवाल पर आयशा ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। मुजरिम 6 हैं, 7 हैं? 6। फी मुजरिम को अंदाज़न कितना, मतलब है कि अगर समझौते के लिए लिया जाए, अगर अंदाज़न, क्योंकि ज़्यादा तौर पे वो गरीब ही हैं, सब पता है ना, तो अंदाज़न कितना को मुश्किल से इन्होंने 5-5 लाख करना है। हाँ। अब डेंगू सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू वायरस के फैलाव में तेज़ी आ गई है। पंजाब में सबसे ज़्यादा केसेस लाहौर में सामने आए हैं। लाहौर में एक और डेंगू का मरीज़ दम तोड़ गया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी डेंगू केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ है। भारत अपनी साजिशों से बाज न आया। वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में मुतासिब भारतीय जजेस ने बेईमानी की इंतहा कर दी। पाकिस्तान को 3 यकीनी गोल्ड मेडल से महरूम कर दिया। भारतीय हथकंडों के बावजूद पाकिस्तान 1 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब रहा। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। खबर यह है कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने साबिक असिस्टेंट डायरेक्टर नैब मोहम्मद उमैर की अपील मुस्तरद कर दी। साबिक असिस्टेंट डायरेक्टर नैब ने सर्विस से निकाले जाने के हुक्म पर अपील की थी। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि नैब मोहम्मद उमैर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। मोहम्मद उमैर ने शर्जील मेमन रेफरेंस में 15 असल प्रॉपर्टी डीड चुराए थे। इंक्वायरी के बाद नैब ने मोहम्मद उमैर को नौकरी से निकालने का हुक्म जारी किया था। सदर आरिफ अलवी का नैब की जानिब से मोहम्मद उमैर को सर्विस से फारिग करने का हुक्म बरकरार रखा। आरिफ अलवी ने कहा कि जुर्म की नौयत पर नौकरी से बर्खास्त करने की सज़ा काफ़ी नहीं, नैब मोहम्मद उमैर के खिलाफ कानून की आखिरी हद तक कार्रवाई करे। डॉक्टर आरिफ अलवी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल वाडा की कराची में रिहाइश का आमद। सदर आरिफ अलवी ने सेनेटर फैसल वाडा से वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया और फातिह ख्वानी की। तो डॉक्टर आरिफ अलवी जो कि सेनेटर फैसल वाडा के घर पहुंचे हैं कराची में और उनसे उनके वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की और फातिह ख्वानी की। NCOC ने महफिल मिलाद और सीरत कॉन्फ्रेंस के हवाले से हिदायत जारी की हैं। NCOC ने कहा कि महफिल मिलाद के दौरान मास्क का इस्तेमाल, समाजी फासला और सैनिटाइजर की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। उलमा और नात खानों की मुकम्मल वैक्सीनेशन लाजमी है। महफिल में शिरकत करने वालों की वैक्सीनेशन की जाए।
इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इंतखाबी फहरिस्तों की नज़रसानी का काम शुरू कर दिया। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने कहा इंतखाबी फहरिस्तों पर नज़रसानी डोर टू डोर तस्दीक के ज़रिए होगी। 7 नवंबर से 6 दिसंबर तक घर घर जाकर वोटर्स की तस्दीक की जाएगी। 13 अप्रैल 2022 को हतमी इंतखाबी फहरिस्त शाया कर दी जाएगी। पंजाब में बल्दियाती और आइंदा आम इंतखाबात का दारोमदार इन्हीं इंतखाबी फहरिस्तों पर होगा। न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।